Assalamu alaikum viewers. Today we are going to see about healing. What is healing? It is body's response to injury in an attempt to restore normal structure and function. It involves two processes. One is regeneration and other is repair. What occurs in regeneration? Healing takes place by proliferation of parenchymal cells and result in complete restoration of the original tissue. In repair, when healing takes place by proliferation of connective tissue resulting in fibrosis and scarring. This occur in repair. Healing takes place by proliferation of connective tissue. And it results in fibrosis and scarring. This was about regeneration and repair. Now we will see the types of cell on the basis of ability to divide. The cells are divided into three types depending on their ability to divide. They are divided into labile cell, stable cell, and permanent cell. What happens in labile cells? They continue to multiply throughout the life. Example of these labile cells are surface epithelium of epidermis, alimentary canal, and urinary tract. Alimentary tract and urinary tract. Now these stable cells. What are stable cells? They loses their ability to proliferate after adolescence, but retain the capacity to multiply in response to stimulus. Whenever there is a stimulus, they divide. Its example are parenchymal cells of liver and pancreas. Now these permanent cell, they loses their ability to proliferate. Its example are neurons of nervous system, skeletal muscle, and cardiac muscle. This was about labile cell, stable cell, and permanent cell. Now we are going to see regeneration and repair. What occurs in regeneration? There occurs regeneration of original cells from the margin of injury.
there occurs proliferation of that migrated cells and subsequent differentiation and maturation. Now this was in regeneration. In repair, there is characteristic formation of granulation tissue, and there occurs contraction of wound. Now we will see healing by primary intention. Now we are going to see granulation tissue. We often go in ward to take a surgery case. We see a case of wound. There occurs formation of granulation tissue. Formation of granulation tissue is a healthy sign. It shows that the wound is healing. Now we will see granulation tissue. ये कैसी दिखती है? ये एकदम पिंक कलर की होती है और उसमें एकदम ग्रैन्यूल्स स्किन होती है, तो उसमें ऐसे ग्रैन्यूल्स दिखते हैं. तो एक एक ग्रैन्यूल जो है वो एक वेसल बताता है. और जो डायबिटिक वगैरह जो पेशेंट होते हैं तो उसमें ग्रैन्युलेशन टिश्यू जो है वो जल्दी फॉर्म नहीं होती. तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू कैसे फॉर्म होती है? पहला फेज़ होता है फेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन में फेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन इसमें क्या होता है? फॉलोइंग ट्रॉमा ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है एट द साइट ऑफ इंजरी. उसके बाद प्लाज्मा सेल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं. देन फेज़ ऑफ क्लियरेंस आता है. उसके बाद फेज़ ऑफ क्लियरेंस में क्या होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम न्यूट्रोफिल से आते हैं और अपनी जो डेड टिश्यू है उससे ऑटोलाइटिक एंजाइम्स आते हैं. टिश्यू से डेड टिश्यू से अपने ऑटोलाइटिक एंजाइम आते हैं. देन फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस जो नेक्रोटिक टिश्यू जो है उसको क्लियर कर देती है. फिर ग्रैन्युलेशन टिश्यू. इसमें दो चीज़ें हैं, एंजियोजेनेसिस, दूसरा है फाइब्रोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस में होता ये कि नए वेसल्स फॉर्म होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर एंड बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर. देन फाइब्रोजेनेसिस में जैसे ही मैचुरेशन कंप्लीट होता है तो जो ये कोलाजन होता है वो कोलाजन इंक्रीज़ होता है. फाइब्रोब्लास्ट और ब्लड वेसल्स वो जो है थोड़े कम रहते हैं कोलाजन के कंपैरिजन में. ये थोड़े कम होते हैं इसके कंपैरिजन में. और इसे क्या कहते हैं? साइकेट्राइजेशन. Now we are going to see the most important part of this lecture, that is healing of wound by primary and secondary intention. Healing by first union or primary first intention.
और प्राइमरी यूनियन। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें क्लीन एंड अनइन्फेक्टेड वुंड रहता है। दूसरा, सर्जिकली इंसाइज्ड रहता है। तीसरा ये कि टिश्यू और सेल्स का इतना लॉस नहीं होता, विदाउट लॉस ऑफ टिश्यू एंड सेल्स। और जो एजेस है उनके वो अप्रॉक्सीमेटेड रहते सर्जिकल सूचर्स से। ये 4 इसके कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ इसके स्टेजेस देखेंगे हम लोग। पहला स्टेज होता है इसका इनिशियल हेमोरेज। ये हमारा वुंड है। जैसे ही इंजरी हुई सबसे पहला होता है कि उसमें ब्लड आकर जमा होता है। ये पूरा फिल हो जाता है ब्लड से। और ये है हमारा सूचर ट्रैक। और ये है एपिडर्मिस। तो ऊपर थोड़े बड़े सेल्स होते हैं। देन ये बेसल लेयर में इस बहुत सारे सेल्स होते हैं। व्हाट आई एम ड्राइंग इज न्यूक्लियस। नाउ इनिशियल हेमोरेज बस इतना होता है कि ब्लड जमा हो जाता है इसमें फॉलोइंग इंजरी। और ये ब्लड जमा होता है तो इसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होती, डिहाइड्रेशन नहीं होता ये उनका। अब सेकेंड स्टेज इसमें है एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि एजेस के साइड से यहाँ पे पॉलीमॉर्फ्स जमा होते हैं। मैं ऐसे पी से शो कर रही हूँ यहाँ पे। सिमिलरली ये जो सूचर ट्रैक है इसके पास भी जमा होंगे पॉलीमॉर्फ्स। और ये बाय द एंड ऑफ थर्ड डे ये पॉलीमॉर्फ्स जो है मैक्रोफेजेस से रिप्लेस हो जाते। अब इसका थर्ड स्टेज है एपिथेलियल चेंजेस। इसमें क्या होता है, ये जो एपिडर्मिस है इसकी जो ये बेसल लेयर है ये माइग्रेट होना चालू करती है इसके अंदर, हमारे वुंड के अंदर। और ये यहाँ पे ऐसे सील कर देती है, ऐसे यहाँ पे ये ग्रो होना चालू करती है। तो ये जो एपिथेलियम है ये नेक्रोटिक टिश्यू, ऊपर जो है ये नेक्रोटिक टिश्यू को सेपरेट करती है नीचे की लाइव टिश्यू से। और बाय द एंड ऑफ 5th डे यहाँ पे कोलेजेंस भी आना चालू हो जाते हैं। इसके बाद वाला स्टेज है स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाय 3rd डे यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट आते हैं। और यहाँ पे ब्लड वेसल फॉर्म होती है, ब्लड वेसल न्यूवेस्कुलराइजेशन। यहाँ पे ऐसे वेसल्स आते हैं। और जैसे ही मैचुरेशन कंप्लीट होने लगता है तो इसमें कोलेजन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। और इसका जो लास्ट स्टेज है वो है मतलब ये सूचर ट्रैक जो है, सूचर ट्रैक। आई एम अनेबल टू राइट हियर।
तो जब हम सूचर्स रिमूव करते हैं, ये जो एक सूचर ट्रैक है, ये एक इंडिविजुअल वुंड की तरह एक्ट करती है। और जब ये हील हो जाते हैं, जब हम सूचर्स निकालते हैं तो इसके साथ जो इपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे बनी है तो वो उसके साथ निकलती है। और अगर इन केस ये रह गई अंदर इपिथेलियल टिश्यू तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड वुंड तैयार करेंगी, एपिडर्मल सिस्ट हो सकता है इसकी वजह से। दिस वॉज अबाउट हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी about healing by secondary intention. Healing by second intention or secondary union. इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, इसमें जो वुंड है ओपन होता है विद लार्ज डिफेक्ट होता है इसमें। एंड एट टाइम्स इट इज़ इन्फेक्टेड ऑल्सो। इसमें होता है कि सेल्स एंड टिश्यू का लॉस होता है। देन ये सूचर से अप्रोक्सीमेटेड नहीं रहता है, नॉट अप्रोक्सीमेटेड बाय सूचर। इसके जो पहले 2 स्टेप है वो हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन के जैसे ही है। हम इसके स्टेप्स देखेंगे। पहला स्टेप है इसमें इनिशियल हेमरेज, दूसरा स्टेप है इन्फ्लेमेटरी फेज, तीसरा है इपिथेलियल चेंजेस। इसमें ऐसा है कि जब तक नीचे ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म नहीं होंगी तब तक ये बेसल सेल जो है वो माइग्रेट होना नहीं स्टार्ट होते। तो इसका हम डायग्राम देखेंगे। We have seen 2 steps, initial hemorrhage, second was inflammatory phase, third was epithelial changes. हाँ, तो हम इसके बारे में देख रहे थे। एपिथेलियल चेंजेस जो है वो स्टार्ट होता है आफ्टर द ग्रैन्युलेशन टिश्यू इज़ प्रेजेंट। इसमें भी वैसे ही होता है, दिस एपिथेलियल टिश्यू सेपरेट द वायबल टिश्यू फ्रॉम द नेक्रोटिक टिश्यू। चौथा स्टेप है इसका ग्रैन्युलेशन टिश्यू। हमने पहले ही देखा है कि ग्रैन्युलेशन टिश्यू में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, नियोवैस्कुलराइजेशन होते हैं। और ये जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है ये मेन बल्क बनाती है इसका सेकेंड इंटेंशन से जो हीलिंग हो रहा है उसका। इसके बाद दिस इज़ वुंड कॉन्ट्रैक्शन। Next step is wound contraction. This is characteristic to this healing. It is not present in primary union. The wound कितना contract होता है, तो 1/3 to 1/4 of its original size. इसमें सेकेंडरी यूनियन में ये होता है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं और हीलिंग जो है लेट होती है। और अगर हम सर्जिकली
इस डेड और इन्फेक्टेड टिश्यू को रिमूव करे तो हीलिंग जल्दी हो सकती है. दिस वॉज अबाउट हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन. इसका हम डायग्राम देखेंगे. ये है, हमने पहले जो देखा था वो सर्जिकली इंसाइज था, तो बहुत अच्छा क्लीन वुंड था, लेकिन ये एकदम इरेगुलर होगा. तो यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होगा. इसमें ये ब्लड कलेक्ट हो गया, और ये था इनिशियल स्टेज जो था, इनिशियल हेमरेज का ये हो गया. उसके बाद इन्फ्लेमेटरी फेज, यहाँ पे पॉलीमॉर्फ्स जमा होते हैं आके, और ये हमारा एपिथेलियम है, बेसल सेल, इसके बहुत सारे सेल्स. और इसके बाद इसके नीचे ग्रेन्युलेशन टिश्यू जमा होती है. ये हमारा हो गया, यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो गया, ब्लड हो गया था. उसके बाद नीचे जब तक ग्रेन्युलेशन टिश्यू नहीं आती तब तक बेसल सेल माइग्रेट नहीं करते. तो नीचे हमारी ग्रेन्युलेशन टिश्यू आ गई, उसमें होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, न्यू ब्लड वेसल होंगी. ये पॉलीमॉर्फ्स थे बहुत सारे, फाइब्रोब्लास्ट और ब्लड वेसल, न्यू वेस्कुलराइजेशन, एंजियोजेनेसिस जो था. तो और फिर उसके बाद ये बेसल सेल माइग्रेट होना चालू होते हैं. ये तो हमारा था एपिथेलियम पहले से ही इधर जो था. तो लेटर इट माइग्रेट हियर. नाउ आफ्टर दैट हाउ इट लुक्स लाइक. ये हमारे कोलेजन फाइबर्स, ये है हमारे बेसल सेल्स, और ये जो स्कार टिश्यू फॉर्म हुई ये वो स्कार टिश्यू है, कोलेजन स्कार. ये हमारा न्यू वेस्कुलराइजेशन. ये फाइब्रोब्लास्ट, ये पॉलीमॉर्फ्स, ये हमारा दिस इज स्कैब, प्लाज्मा सेल्स. दिस वाज अबाउट हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन. नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं वुंड हीलिंग के. पहला तो ये कि उसमें इन्फेक्शन हो सकता है. दूसरा इम्प्लांटेशन सिस्ट या एपिडर्मल सिस्ट जिसे कहते हैं. अगर हम सूचर रिमूव करें, कुछ एपिथेलियल टिश्यू अगर सूचर ट्रैक में रह गई तो उसकी वजह से ये बनता है एपिडर्मल सिस्ट या इम्प्लांटेशन सिस्ट. फिर इसका और क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन. पिगमेंटेशन हो सकता है. अगर आयरन का जो पिगमेंट है हेमोसिड्रिन वो जाके डिपॉजिट हो गया, या फिर कोई दूसरे एलिमेंट वगैरह आके डिपॉजिट हो गए, डेब्रीज, तो उसकी वजह से पिगमेंटेशन आ सकता है. फिर है हो सकता है कि डेफिशिएंट स्कार बने. अगर इनएडिक्वेट ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्म हुई तो उसकी वजह से हमारा बनेगा डेफिशिएंट स्कार. देन और क्या हो सकता है, इंसेजनल हर्निया हो सकता है. अगर वीक स्कार है तो वहाँ से हर्निया हो सकता है. देन हाइपरट्रोफिड स्कार, कीलॉइड फॉर्मेशन.
एक्सेसिव अगर कोलेजन फॉर्म हुआ तो ये दोनों हो सकते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार या फिर कीलॉइड फॉर्मेशन। फिर अगर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसकी वजह से हो सकता है कॉन्ट्रैक्चर। हम लोगों ने तो देखा है डिपिट्रिंग कॉन्ट्रैक्चर कैसे रहता है, उसमें मिडिल फिंगर में यहाँ का जो टेंडन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। रेयर केसेस में इसमें नियोप्लेजिया डेवलप हो सकता है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट हीलिंग, वुंड हीलिंग। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।